Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. This is a lecture of your client-side scripting language subject. Okay. Now, in previous video, we completed our first unit. Okay. In that unit, we learn about different features of JavaScript. Then, what is the object name, property, method, and dot syntax. Then we learn about the different operators and expression, and we also learn about the if statement, switch case statement, and loop statement. Okay. Now today we are going to start our second unit, and that is array and function, and string. Okay. Now this unit is mainly divided into four parts. First one is array. In this part, we will learn about how to declare array, how to create array. Okay. Then second part, that is function. Then third part, how to calling a function, and last one is about string. Now from this four topic, today we are going to learn about what is array, how to declaring and initialize an array, looping an array, then how to adding an array, sorting an array, then changing element of array, what is function, how to define and declare the function, and scope of variable and argument, and what is global variable. Okay. Now first we'll start with what is array. Now what is array? Array is a collection of similar data type of element which can be referred by the common name. मतलब array क्या होता है? array क्या होता है कि collection of similar type of element, मतलब जिसका डेटा टाइप सेम रहता है वैसे एलिमेंट को उसको कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एरे. फॉर एग्जांपल आपके पास 5 इंटीजर एलिमेंट्स है. ओके. तो उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे? एरे. और उसको एक नेम मतलब कॉमन नेम असाइन होगा. ओके. दैट इज कॉल्ड एज अ एरे. सो इन शॉर्ट व्हाट इज एरे? एरे इज अ collection of same data type. Okay. Now the particular position of the element in the array that is called as the array index. मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5 एलिमेंट है. ओके. 5 एलिमेंट है हमारे पास. तो इसमें जो उसकी जो पोजीशन है, कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 एलिमेंट है 1 2 3 4. तो ये जो 5 एलिमेंट है उनके अलग अलग पोजीशन है. ओके. तो जो उसकी पोजीशन है दैट इज कॉल्ड एज द एरे इंडेक्स. एरे इंडेक्स किसको बोलते हैं? तो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एज द एरे इंडेक्स. नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अवर एरे. इसमें क्या है? हमारे पास मेनली 5 एलिमेंट्स है. नाउ हियर जो बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है ना दैट इज कॉल्ड एज एरे वैल्यू, और ऊपर एरे इंडेक्स क्या है? पोजीशन ऑफ दैट वैल्यू. उसकी पोजीशन को क्या बोलते हैं? एरे इंडेक्स. Now array index that is starting from 0. Here you can see the first element of the array that is stored on the 0th location, and we can start storing the element from any position. देखो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया व्हाट इज एरे वैल्यू, एरे इंडेक्स. एरे इंडेक्स मतलब उसकी पोजीशन, और जो भी उसके डेटा रहता है दैट इज कॉल्ड एज एरे वैल्यू. ओके. देन नेक्स्ट है हमारा how to declaring an array. Now in JavaScript the array can be created using array object. For example आपको array बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आप लोग को array बनाना है then you have to use the array object. Now suppose we want to create an array of 10 element, then we can write वेरिएबल का नाम लिखो then new array 10. मतलब हम लोग को इधर क्या करना है? एक array बनाना है, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 10. ओके. 10 एलिमेंट. Then what you have to write down? You have to write down first where, that is for variable. Then वेरिएबल का नाम लिखो. यहाँ पे दिया है वेरिएबल का नाम AR. Then इज इक्वल टू करो. फिर न्यू बनाना है तो राइट डाउन न्यू. देन एरे. और 10 जो है वो क्या है? आपकी साइज ऑफ द एरे. मतलब एरे में कितने एलिमेंट रहेंगे वो आपको वहाँ पे ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना है. फॉर एग्जांपल आपको 5 एलिमेंट एंटर करना है तो यू हैव टू राइट डाउन 5 देयर. आपको जितने भी एलिमेंट एंटर करवाने हैं उतने एलिमेंट के उतना नंबर वहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने होंगे. नाउ हियर द न्यू ऑपरेटर वी कैन अलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली फॉर द एरे. देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना न्यू ऑपरेटर. न्यू ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? न्यू ऑपरेटर दैट इज यूज फॉर अलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली. मतलब डायनेमिकली मेमोरी आप लोग को अलोकेट करनी है देन यू कैन यूज दिस न्यू ऑपरेटर. Now in this bracket the size of the array is mentioned and the variable AR donate as the name of the array. मतलब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ना
एयर, जो एयर क्या है वो है एरे का नेम। देन न्यू ऑपरेटर दैट इज़ यूज टू एलोकेट द मेमोरी, और जो 10 दिख रहा है दैट इज़ द साइज ऑफ आवर एरे। ओके, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द एरे और डिक्लेयर एन एरे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियलाइजेशन? इनिशियलाइजेशन क्या होता है? इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू व्हेन आइदर अ वेरिएबल और एरे इज डिक्लेयर। इनिशियलाइजेशन क्या रहता है कि कोई भी एरे हम लोग ने क्रिएट किया है तब उसको वैल्यू असाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ इनिशियलाइजेशन। ओके, देखो यहाँ पे दिया है, जब हम लोग को एरे को इनिशियलाइज करते हैं तब क्या होता है, तो क्या होता है डिक्लेयर द नेम ऑफ द एरे। फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, एरे का नेम डिक्लेयर करना है। देन मेक यूज़ ऑफ द कीवर्ड न्यू। कौन सा कीवर्ड हम लोग को यूज़ करना है? न्यू। देन ईच वैल्यू विद इन द एरे एज एन एरे एलिमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय द कॉमा। देखो यहाँ पे ए बॉक्स के अंदर आप लोग को एक एरे का इनिशियलाइजेशन बताया। ओके, तो पहले वेर का मतलब क्या है? वेरिएबल, दैट इज द रिजर्व वर्ड। देन उसके बाद क्या है हमारा माई लिस्ट, दैट इज नेम ऑफ द एरे। तो पहले आप लोग को क्या करना है, एरे का नेम लिखना है। देन इक्वल करो, देन ऑपरेटर कौन सा यूज़ करना है? न्यू। न्यू ऑपरेटर तो किसके लिए? मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है। देन एरे लिखना है आपको, और ब्रैकेट के अंदर आप लोग को जो भी एलिमेंट आप लोग को वैल्यू देनी है एरे को, वो आपको वैल्यू देनी है। और ये जो वैल्यू है आपको किससे सेपरेट करनी है? बाय comma. Okay, with the help of comma you have to separate this value. So in this way you can initialize an array. Initialization means you have to simple assign the value to the array. इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या रहता है? सिंपल कि आपको एरे को वैल्यू देना है। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइनिंग एन एरे एलिमेंट। एरे के एलिमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, नाउ द एलिमेंट इन द एरे आर स्टोर फ्रॉम इंडेक्स। ओके, फॉर एग्जांपल हियर द एलिमेंट इन एरे, एरे के एलिमेंट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल 10 है, 20, 30, 40, 50, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ आवर एरे। तो यहाँ पे देखो आप लोग को क्या करना है कि एरे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल तो अब लोग को एरे को डिफाइन करना है, देन यू हैव टू यूज़ द एरे इंडेक्स, मतलब उसका जो पोजीशन है वो आप लोग को यूज़ करना है। Now we will see the simple JavaScript that illustrate the initialization of array by defining the array element. यहाँ पे एक सिंपल एरे जावास्क्रिप्ट दिया है, वो इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करेंगे, कैसे एरे को इनिशियलाइज करना है, उसको डिफाइन करना है। ओके, सो फर्स्ट टेक व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट डाउन HTML हेड एंड टाइटल दो एरे डेमो। देन यहाँ पे आप लोग को बॉडी टैग में लिखना है स्ट्रॉन्ग। देन स्क्रिप्ट टैग के अंदर type is equal to text and javascript. Okay, then in next line what you have to do, you have to declare an array. So write down a, जो है हमारा array का name, वो क्या है, हम लोग ने यहाँ पे array create किया। So ये a is equal to new ऑपरेटर का नाम जो मेमोरी एलोकेट करता है। देन array 5, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है 5, तो एरे कितने एलिमेंट हम लोग मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं इसमें? 5 एलिमेंट। ओके, ओनली 5 एलिमेंट यू कैन एंटर। सो एरे के वैल्यू आपको एंटर करने के लिए आप लोग को फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। एरे में जब भी आप लोग को वैल्यू एंटर करनी है तो आप लोग को कौन सी लूप यूज़ करनी है? 4। सो 4 i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। यहाँ पे लेस देन 5 क्यों लिखा है? क्योंकि मैक्सिमम एरे की लेंथ है 5। देन ai इज इक्वल टू आई, मतलब एक आई मतलब ए की जो पोजीशन है वहाँ पे आई नंबर की पोजीशन पे, आई नंबर का मतलब फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट एंटर होगा, सेकंड नंबर की पोजीशन पे सेकंड एलिमेंट एंटर होगा। ओके, देन यू हैव टू प्रिंट दैट वैल्यू। तो एरे की वैल्यू को डिस्प्ले करवानी है तो आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए आई प्लस बी आर का मतलब लाइन ब्रेक। ओके, सो द नेक्स्ट वन, दूसरा क्या है, आप लोग को एक दूसरा एरे लेना है। ओके, वो तो उसके लिए आप लोग को न्यू एरे क्रिएट करना है। तो बी इज इक्वल टू न्यू एरे, ए क्या रहेगा?
फर्स्ट जो एरे था यहाँ पे एरे ए, उसमें हम लोग ने क्या यूज़र से वैल्यू एंटर करवाया, ओके। देन सेकेंड एरे है हमारा बी, उसमें हम लोग ने एरे को इनिशियलाइज किया, मतलब जब एरे हम लोग ने डिक्लेयर किया उसके साथ उसका वैल्यू एंटर कर दी। देखो ना यहाँ पे वैल्यू है 11, 22, 33, 44 एंड 55, ओके। सो देन यू हैव टू डिस्प्ले दैट एरे सॉरी। सो यहाँ पे एक थर्ड एरे लिया है, दैट इज सी। Here also the value are initialized, okay. So in this way you can create arrow then display the arrow. So now here you can see the output. फर्स्ट हम लोग ने यूज़र से एंटर करवाया, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4। देन दूसरा एरो है एरे है, उसमें वैल्यू हम लोग ने पहले से इनिशियलाइज कर दी थी, वो है 11, 22, 33, 44 एंड 45। देन थर्ड एरे है एरे सी, उसमें भी वैल्यू हम लोग ने इनिशियलाइज कर दी थी, दैट इज 100, 200, 300, 400 एंड 500, ओके। सो in this way you can initialize the arrow and create the arrow. Then हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राइट अ जावास्क्रिप्ट टू डिफाइन द एरे एलिमेंट एंड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे। देखो यहाँ पे हम लोग ने पहले सीखा कि एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और क्रिएट करते हैं। अभी हमारे एरे में कितने एलिमेंट है वो हम लोग को फाइंड करना है, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक वन एरे, ए इज इक्वल टू न्यू एरे। हमारा एरे हम लोग ने डायरेक्ट इनिशियलाइज किया है, तो उसकी वैल्यू क्या क्या है, 11, 22, 33, 44 एंड 55। ना उसको लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए एक फंक्शन आता है, दैट इज लेंथ। सो डायरेक्टली यू हैव टू राइट डाउन var, दैट इज वेरिएबल। देन len एक वेरिएबल का नेम है, देन a डॉट लेंथ, ए क्या है, हमारा एरे का नेम, ओके। देन जो फंक्शन है वो लिखो डॉट लेंथ, तो डायरेक्टली आप लोग को वो एरे की लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखा आउटपुट में द लेंथ ऑफ द एरे इज 5 है ना। यहाँ पे हम लोग ने एरे इनिशियलाइज किया था, तब कितने वैल्यू थे अंदर, 5, तो डिस्प्ले करेगा द लेंथ ऑफ द एरे इज 5, ओके। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द एरे। देन नेक्स्ट है हमारा लूपिंग एन एरे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग? Looping an array means visiting the each element present in the array. For example, हमारे पास एरे में 10 एलिमेंट है और 10 एलिमेंट है, ओके। तो आप वो 10 एलिमेंट को विजिट करेंगे वन बाय वन, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ लूपिंग। उसको क्या बोलते हैं, लूपिंग, ओके। सो ये लूपिंग कैसे परफॉर्म होता है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज लूपिंग विद द एग्जाम्पल, ओके। देखो यहाँ पे एक एरे लिया है डे, डे का एक एरे है, ओके। तो डेज इज इक्वल टू न्यू एरे। आप लोगों को कैसे, पहले आप लोगों को क्या लिखना है, एरे नेम दैट इज डेज, देन न्यू दैट इज ऑपरेटर एंड एरे। फिर आप लोग वहाँ पे वैल्यू लेंगे, डे 0 इज इक्वल टू संडे, डे 1 इज इक्वल टू मंडे, सिमिलरली डे 6 इज इक्वल टू सैटरडे, ओके। सो आप लोग को कैसे इनिशियलाइज करना है, देखो यहाँ पे फॉर लूपिंग यू कैन यूज द योर फोर लूप। सो राइट डाउन 4, आई इज इक्वल टू 0, आई 0 से स्टार्ट करो, आई लेस देन डे डॉट लेंथ। डे डॉट लेंथ क्या रहेगा कि जो आपका एरे है उसकी लेंथ कितनी है, जितनी आपके एरे की लेंथ होगी उतने टाइम में फोर लूप है वो रिपीट होगा। क्या होगा, जितनी आपकी एरे की लेंथ होगी उतने टाइम में आपका ये जो फोर लूप है रिपीट होगा, ओके। सो आई प्लस प्लस देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट डे आई प्लस बी आर। सो ये क्या करेगा, आपके जो एरे है वो सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करवाएगा, ओके। सो योर आउटपुट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं आपको एरे की, वो सारे वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ओके। सो इन दिस वे you can perform the looping in your array, okay. Then our next topic, that is adding an array. Now we can also add the element in the array at the end। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एरे में 10 एलिमेंट हो, ओके, और आपको उसका एडिशन करना है, सॉरी ऐड करना है, तो यू कैन
ऐड एलिमेंट एट द एंड। ओके, सो आप लोग जब ऐड करेंगे तो क्या होगा कि उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गई। क्या होगा, कोई एलिमेंट आप लोग एरे में 10 एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ऐड करना है तो क्या होगा 11 एलिमेंट हो गए ना, तो उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल हियर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक वन एरे दैट इज ए इज इक्वल टू न्यू एरे। हम लोग ने एक एरे लिया है ए। ओके, तो उसमें एलिमेंट में कौन कौन से हैं, उसके एलिमेंट हम लोग ने सपोज लिए है ए 0 इज इक्वल टू 10, A1 20, सिमिलरली A4 इज इक्वल टू 50। ओके, नाउ हमें क्या करना है, अभी एक एरे एलिमेंट ऐड करना है। सो यू कैन यूज़ योर फोर लूप। सो 4i इज इक्वल टू 0, किसके लिए ये फोर लूप है, एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग ने एक फोर लूप चलाई है। ओके, नाउ हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे द एलिमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट द एलिमेंट इज एडेड इन द एरे। कौन सा एलिमेंट ऐड करना है हम लोग को, ए डॉट लेंथ इज इक्वल टू 60। एक 60 एलिमेंट हम लोग को ऐड करना है, तो कौन सी पोजीशन पे हम लोग ऐड करेंगे, एरे की जो लेंथ है उसकी पोजीशन पे। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट द एलिमेंट इन द एरे आर करके आपको डिस्प्ले करवाना है। और देखो यहाँ पे पहले हम लोग ने फोर लूप चलाया था, वो किसके लिए, तो जो पहले इनिशियल जो एरे के एलिमेंट है वो डिस्प्ले करवाने के लिए। ओके, फिर हम लोग ने क्या किया, लास्ट पोजीशन पे एक एलिमेंट ऐड किया दैट इज 60। उसके बाद फिर से एक फोर लूप चलाया टू डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द एरे आफ्टर एडिंग द, मतलब ऐड करने के बाद फिर से हम लोग को एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हम लोग ने फोर लूप यूज़ किया है। ओके, तो देख सकते हो आप लोग पहले कितने एलिमेंट थे उसमें, ओनली 5 एलिमेंट दैट इज 10 20 30 40 एंड 50। फिर हम लोग ने ऐड किया एक नया एलिमेंट दैट इज 60, तो उसके बाद इसके एलिमेंट कौन से हुए, दैट इज 6th एलिमेंट। ओके, तो ये जो न्यू एलिमेंट आप लोग ऐड करना चाहते हो ना हमारे एरे में, वो कहाँ पे ऐड होता है, एट द एंड ऑफ द एरे। एरे के एंड में आप लोग नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ओके, तो सो इन दिस वे यू कैन ऐड द एलिमेंट इन अ एरे। देन नेक्स्ट है sorting. Now what do you mean by sorting? Now the element can be sorted using the built-in function sort. For example, आप लोग को आपके एरे के एलिमेंट को शॉर्ट करना है, देन यू कैन यूज द बिल्ट इन फंक्शन दैट इज सॉर्ट। कौन सा फंक्शन यूज़ करना है आपको, सॉर्ट फंक्शन। ओके, नाउ दियर द सॉर्टिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब और सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग का मतलब क्या रहता है कि आप लोग को अरेंज करना है आपके एलिमेंट को इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एज अ सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग क्या रहता है, अरेंज करना अपने एरे के एलिमेंट को इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। वो किससे परफॉर्म होता है, बाय यूजिंग द फंक्शन दैट इज सॉर्ट। जो सॉर्ट फंक्शन रहता है उससे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। नाउ हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। पहले आप लोग को एक एरे लेना है, ए इज इक्वल टू न्यू एरे, फिर उसके वैल्यू हम लोग ने एंटर करवाई दैट इज A0 to A4 दैट इज ओके। देन यू हैव टू प्रिंट एट एरो। सो यहाँ पे एरे को प्रिंट कराने के लिए यू हैव टू यूज़ द फोर लूप। देन एक फंक्शन यूज़ करो दैट इज ए डॉट सॉर्ट। ए जो है वो क्या है, हमारा एरे का नाम, और सॉर्ट क्या है, जो फंक्शन है वो किसके लिए यूज़ होता है, फॉर सॉर्टिंग द एरे। देन उसके बाद फिर से आप लोग को एरे के एलिमेंट को प्रिंट करवाने हैं, तो लिखो 4i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और नीचे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट AI प्लस। ओके, सो यहाँ पे देखो आपके एरे के एलिमेंट कौन कौन से हैं, पहले 40 30 10 50 एंड 20। फिर हम लोग ने कौन सा एक फंक्शन यूज़ किया, दैट इज ए डॉट सॉर्ट। सो आफ्टर सॉर्टिंग व्हाट इज योर एरे एलिमेंट, दैट इज 10 20 30 40 and 50. Okay, so in this way you can perform the sorting in your array with the help of sort function. Which function you have to use, you have to use the sort function for the sorting. Okay, then हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंबाइनिंग एरे एलिमेंट into the string. देखो
एरे में क्या रहता है कि एरे इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे में सेम एलिमेंट एरे में सेम डेटा टाइप के अलग अलग एलिमेंट रहते हैं। ओके, तो उसको हमको सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एरे है, उसमें 10 एलिमेंट है, तो उसको एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन द एरे इन जावास्क्रिप्ट यूजिंग द टू फंक्शन। तो यहाँ पे देखो कि मेनली इट यूज दिस टू फंक्शन to combining the array element into the string. Now which are these two function? That is joint and concat. देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, joint and concat, that help us to combine the array element. देखो यहाँ पे what now यहाँ पे concat का यूज़ क्या है? यहाँ पे concat मेथड सेपरेट ईच वैल्यू विद अ कॉमा। जो क्या है, एक जॉइंट एंड कॉन्केट का डिफरेंस क्या है कि कॉन्केट मेथड जो है, जो ईच एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट करता है। वेल दिस जॉइंट मेथड इज ऑल्सो यूज कॉमा टू सेपरेट अ वैल्यू, बट यू कैन स्पेसिफाई द कैरेक्टर अदर दैन द कॉमा टू सेपरेट वैल्यू। देखो जॉइंट एंड कॉन्केट में मेन तो डिफरेंस क्या है कि जॉइंट कॉन्केट में क्या रहता है कि जो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो उसको सेपरेट करने के लिए वो कॉमा यूज़ करता है। पर जॉइंट में हम लोग को कॉमा के जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मुझे डॉट यूज़ करना है, तो आप लोग वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। डॉट नहीं यूज़ करना है, कोई दूसरा सेमीकोलन यूज़ करना है, तो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द जॉइंट एंड कॉन्केट। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल हियर। we have to take one array, that is a is equal to new array. array के एलिमेंट कौन कौन से? एक तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। ओके, देन दूसरा है ब्लू, इंडिगो, वायलेट। फिर आप लोग को क्या करना है, अब यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना है, वेरिएबल स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू ए डॉट जॉइंट। यहाँ पे हम लोग ने दो फंक्शन देखे ना, एक तो जॉइंट एंड कॉन्केट। तो पहले हम लोग देखते हैं जॉइंट का, तो स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू ए डॉट जॉइंट। देन नीचे फिर से लिखो दूसरा एक स्ट्रिंग लो, वेरिएबल स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू ए डॉट कॉन्केट। तो यहाँ पे देखो आप लोग जॉइंट में आ गया आपका, देखो यहाँ पे जॉइंट के जो ब्रैकेट है उसमें यहाँ पे ओनली स्पेस दिखा है, तो आप लोग वो कॉमा के जगह पे सिर्फ यहाँ पे स्पेस ही इंसर्ट करवाया है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो कि जॉइंट में आप लोग को कॉमा नहीं देना है, तो आप लोग कोई भी अदर ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो फॉर सेपरेट बिटवीन द टू एलिमेंट। सो यहाँ पे देखो द जॉइंट मेथड एंड द कॉन्केट मेथड। कॉन्केट मेथड में सारे जो एलिमेंट है वो कॉमा से सेपरेट हुए। ओके, सो हियर दिस जॉइन एंड कॉन्केट, दिस टू मेथड इज यूज टू combining the array element into a single string. Okay, then नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग द एलिमेंट ऑफ एन एरे, कि एरे के एलिमेंट को आपको चेंज करना है। नाउ हाउ यू कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ एन एरे? फॉर दैट यू कैन यूज द 4 मेथड। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एरे है, उसमें आपके पास 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको 4 एलिमेंट को रिप्लेस करके 6 करना है। ओके, तो हाउ यू कैन चेंज? यू कैन चेंज बाय यूजिंग 4 मेथड। फर्स्ट वन है हमारा शिफ्ट, सेकंड है पुश, थर्ड है पॉप मेथड एंड फोर्थ है रिवर्स मेथड। नाउ व्हाट इज द शिफ्ट मेथड? नाउ दिस मेथड रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। रिमूव मेथड क्या करेगा? जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। ओके, so you can change the element of an array. Then here the syntax is where number is equal to a dot shift. okay, ये है आपका शिफ्ट मेथड यूज़ करना है, तो आप लोग को सिर्फ एरे का नेम लिखो a एंड शिफ्ट मेथड लिखो। ओके, देन सेकंड है पुश मेथड क्या करेगा? दिस पुश मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे। मतलब कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड करना है, देन वी कैन यूज दिस पुश मेथड। वो कहाँ पे न्यू एलिमेंट ऐड करेगा? एट द एंड ऑफ द एरे, एरे के एंड में वो नया एलिमेंट ऐड करेगा। ओके, सो हियर द ए डॉट पुश 60। तो इस मेथड को कैसे यूज़ करना है? सिंपली आप लोग को एरे का नाम लिखो, दैट इज़ ए, डॉट ऑपरेटर लिखो एंड पुश
और ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट आपको ऐड करना है वो आप लोग लिख सकते हो। ओके, द नेक्स्ट मेथड है हमारा पॉप मेथड। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पॉप मेथड? दिस मेथड रिटर्न एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। मतलब आपके जो एरे के लास्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करवाना है और उसको रिमूव करना है, देन यू कैन यूज़ दिस योर पॉप मेथड। तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं? डायरेक्टली आपको रिटर्न करना होगा तो पहले एक वेरिएबल ले लो एर, देन एन इज इक्वल टू ए डॉट पॉप, ए जो हमारा एरे है और पॉप हमारा मेथड। ओके, सो दिस पॉप मेथड दैट इज यूज टू रिटर्न एंड रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। देन लास्ट है हमारा रिवर्स मेथड। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिवर्स मेथड? द रिवर्स मेथड इज यूज टू रिवर्स द एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 5 एलिमेंट का एरे है, तो उस एलिमेंट को आपको रिवर्स करना है, देन यू कैन यूज दिस रिवर्स मेथड। सो यू कैन सिंपली राइट ए डॉट रिवर्स। ओके, आप लोग डायरेक्टली रिवर्स मेथड यूज़ कर सकते हो। सो तो आपके जो फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट है 1 to 5, फिर आप लोग ने ए डॉट रिवर्स लिखा तो वो 5 to 1 हो जाएंगे। ओके, वो रिवर्स हो जाएंगे। सो दिस आर द 4 मेथड दैट इज यूज टू चेंज द एलिमेंट ऑफ द एरे, दैट इज शिफ्ट, पुश, पॉप मेथड एंड रिवर्स मेथड। ओके, देन और नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट एज एसोसिएटेड एरे। नाउ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है हमारा? ऑब्जेक्ट एज एसोसिएटेड एरे। नाउ हियर व्हाट इज एसोसिएटेड एरे? एसोसिएटेड एरे इज अ स्पेसिफाइड एरे इन विच द एलिमेंट आर स्टोर इन की वैल्यू पेयर। वो क्या रहता है? एसोसिएटेड एरे क्या रहता है? उसमें जो एरे है वो एज अ की वैल्यू पेयर में आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप लोग को वेरिएबल ए, एक तो वैल्यू है और उसकी सॉरी की है और उसका वैल्यू है। ओके, तो आप लोग को यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग एक प्रोग्राम देखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक एरे लिया है, एरे ए इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट। देखो पहले हम लोग सिंपल एरे क्रिएट करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं? ए न्यू एरे। बट हम लोग को क्या करना है? एसोसिएटेड एरे लेना है, एसोसिएटेड एरे लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए न्यू ऑब्जेक्ट लिखेंगे वहाँ पे, एरे की जगह पे ऑब्जेक्ट। फिर आप लोग को डायरेक्टली वहाँ पे लिखना है ए, देन जो आपकी की है और वैल्यू। ओके, सो सिमिलरली यू हैव टू राइट डाउन A1 A2 ऐसे आप लोग को लिखते जाना है। देन यू हैव टू प्रिंट दैट वैल्यू। सो आपका एरे कैसे डिस्प्ले होगा? 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2 एंड 5 इज इक्वल टू 5। ओके, सो ये रहा हमारा एसोसिएटेड एरो in which the value are elements are specified in a key value pair. Okay, then ये था हमारा एरे। तो हम लोग ने क्या क्या सीखा कि हाउ टू इनिशियलाइज एरे, हाउ टू डिक्लेयर एरे, देन लूपिंग इन एरे, सॉर्टिंग एरे। ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शन। नाउ व्हाट इज फंक्शन? नाउ द सेपरेट फंक्शन कैन बी क्रिएटेड फॉर ईच सेपरेट टास्क। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ओके, तो एक साथ लिखते जाएंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक छोटे छोटे टास्क के लिए छोटे छोटे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो क्या होगा? इससे क्या होता है कि दैट हेल्प इन फाइंडिंग द बग्स फ्रॉम द प्रोग्राम इफिशेंटली। इससे क्या होता है? हम लोग को जो प्रोग्राम में बग्स फाइंड करना है तो हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में डिफेक्ट फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है, देन ऑल्सो वी कैन ईजिली फाइंड दैट एरर। सो हियर व्हाट वी हैव टू डू? we have to separate each task in a separate function. Okay, now how to define a function? Now we can define the function anywhere in the script, either in a head or body section or in both. हम लोग फंक्शन कहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं? हम लोग बॉडी में भी डिफाइन कर सकते हैं और हम लोग हेड पार्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, बट इट इज़ द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू डिफाइन द फंक्शन इन द हेड सेक्शन एंड कॉल दैट फंक्शन फ्रॉम द बॉडी सेक्शन। पर यहाँ पे क्या है, हम लोग जो फंक्शन है उसको मेनली तो किस में? हेड में और बॉडी दोनों पार्ट में डिक्लेयर कर सकते हैं। बट स्टैंडर्ड क्या है कि हम लोग बेटर है कि हम लोग उसको हेड पार्ट में डिक्लेयर करें। ओके, फिर हम लोग उसको बॉडी पार्ट में कॉल कर सकते हो।
So here the keyword function is used while defining the function. फंक्शन को डिफाइन करना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे हम लोग? फंक्शन कीवर्ड. ओके, सो हियर the declaration or syntax of our function, that is first you have to write down keyword function. Okay, पहले क्या लिखना है? function keyword. the name of the function, function का नेम लिखो. then ब्रैकेट में आप लोग को आर्ग्यूमेंट पास करनी है वो फंक्शन की. फॉर एग्जाम्पल हियर आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और आर्ग्यूमेंट n, जितनी भी आर्ग्यूमेंट है वो आप लोग को इस ब्रैकेट में पास करनी है. ओके, सो कैसे लिखना है? पहले आप लोग को फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा? फंक्शन का नेम, फिर क्या आएगा ब्रैकेट में आपके जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट है वो. ओके, और ब्रैकेट के अंदर आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है. सो इन दिस वे यू कैन डिफाइन द फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम लोग ने एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो पहले लिखो HTML हेड टाइटल, और हम लोग बेटर है कि हम लोग को किस में लिखना है? फंक्शन इन हेड पार्ट. ओके, सो पहले लिखो स्क्रिप्ट टैग टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और अंदर लिखो फंक्शन. यहाँ पे देखो फंक्शन का नाम है माई फंक्शन. व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन? पहले कीवर्ड लिखा है फंक्शन, देन फंक्शन का नाम है माई फंक्शन, फिर अंदर उन लोग प्रिंट करवाया डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस स्टेटमेंट इज रिटर्न द विद इन द फंक्शन. दिस स्टेटमेंट इज विद इन द फंक्शन. ये रहा हमारा फंक्शन का डिक्लेरेशन. वो कौन से पार्ट में हुआ है? इन हेड पार्ट. अभी देखो बॉडी पार्ट में. बॉडी पार्ट में क्या करना है? हमको वो फंक्शन को कॉल करवाना है. तो क्या लिखेंगे? पहले स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट द स्टेटमेंट इज बिफोर अ फंक्शन कॉल. ये कौन सा स्टेटमेंट? ए क्या आप लिखेंगे? द स्टेटमेंट इज बिफोर अ फंक्शन कॉल. फिर हम लोग ने एक फंक्शन जो है जो हमने हेड पार्ट में लिखा था उसको कॉल करवाया है. सो यहाँ पे लिखो माई फंक्शन. कैसे कॉल करेंगे फंक्शन को? यू हैव टू जस्ट राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, दैट इज माई फंक्शन. ओके, सो आपका आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट में क्या आएगा? फर्स्ट आएगा आपका ये लाइन, दैट इज द स्टेटमेंट इज विद इन द फंक्शन, एंड दूसरा क्या आएगा? सॉरी, पहले आएगा दिस स्टेटमेंट इज बिफोर द फंक्शन कॉल, एंड दूसरी लाइन क्या आएगी? द स्टेटमेंट इज विद इन द फंक्शन कॉल. ओके, सो ये रहा आपका कि कैसे फंक्शन को लिखना है. देन एडिंग एन आर्ग्यूमेंट, मतलब कैसे फंक्शन में आर्ग्यूमेंट ऐड करना है. सो वी कैन पास सम आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन. फंक्शन में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं. तो कैसे पास करना है? उसके लिए आपके पास सिंटैक्स है फंक्शन, देन फंक्शन नेम, और ब्रैकेट में आप लोग को आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करनी है. जे पहले की तरह ही है, पर यहाँ पे हम लोग ने जो फंक्शन कॉल करवाया था वो विदाउट आर्ग्यूमेंट था, और यहाँ पे आप लोग को आर्ग्यूमेंट पास करनी है, तो ब्रैकेट के अंदर आप लोग आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो. ओके, देन scope of the variable and argument. Now what is the scope of the variable? Now what do you mean by scope? Here the scope is a block or area of program in which the particular variable or argument is accessible. scope क्या रहता है कि एक एरिया रहता है, उसके अंदर ही वो वेरिएबल है और आर्ग्यूमेंट है वो एक्सेसिबल रहता है. उसके बाहर वो वेरिएबल को हम लोग यूज़ करना चाहते हैं ना, तो वो यूज़ नहीं होता है. दैट इज़ कॉल्ड द स्कोप. स्कोप क्या है? सिंपली एक एरिया है. ओके, फॉर एग्जांपल हमारे गांव का एक सरपंच है. ओके, तो क्या वो गांव के हमारे विलेज के लिए ही वर्क कर सकता है, उसके बाद वो वर्क करना चाहता है तो होता है नहीं ना. वैसे ही ये स्कोप है. उसके अंदर क्या रहता है? पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो जो वेरिएबल है उस एरिया के लिए ही वैलिड होगा, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप, दैट इज लोकल एंड ग्लोबल. कितने स्कोप है? ग्लोबल, लोकल एंड ग्लोबल. ओके, नाउ व्हाट इज लोकल स्कोप? लोकल स्कोप क्या रहता है? इफ द वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन देन द वेरिएबल इज कॉल्ड अ लोकल वेरिएबल. मतलब कोई भी वेरिएबल हम लोग ने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है. ओके, देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन था ना, तो उसमें ये कर्ली ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग ने जब कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया है तो वो क्या रह गया? लोकल वेरिएबल. एंड इट्स स्कोप इज लोकल स्कोप, और उसका स्कोप क्या रहेगा? लोकल.
That is also means that the local variable is accessible only within the function in which it is defined and it is not accessible outside that function. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, तो मैंने एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो क्या रह गया, उसके लिए लोकल वेरिएबल हो गया. तो ये ब्रैकेट के बाहर में जब वो वेरिएबल को यूज़ करूँगी तो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, वो उस जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट के अंदर ही वैलिड रहेगा. दैट इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल. ओके, दैट इज ओनली एक्सेसिबल इनसाइड दैट फंक्शन. देन नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वेरिएबल. नाउ व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल? अ वेरिएबल इज अ ग्लोबल वेरिएबल इफ इट इज डिफाइंड आउटसाइड अ फंक्शन. जब कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल. हियर द ग्लोबल वेरिएबल है द ग्लोबल स्कोप इनएक्सेसिबल बाय एनी फंक्शन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के बाहर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वेरिएबल. जब कोई भी वेरिएबल हम लोग ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं तो दूसरे फंक्शन भी उसको यूज़ कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, दूसरे फंक्शन भी उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो ये थे हमारे स्कोप ऑफ द वेरिएबल एन आर्ग्यूमेंट, दैट इज लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप. लोकल स्कोप का मीनिंग क्या रहेगा कि वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ होगा, और ग्लोबल का मीनिंग क्या रहेगा, वो बाहर डिक्लेयर हुआ है तो कोई भी फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो in this lecture what we learn about the array, how to initialize an array, then how to declare array, then how to looping, then sorting an array. Okay, then we learn about the function, how to initialize the function, and the scope of the variable and argument. Okay, now I hope you all understand today's topic. Thank you.